Dear children, in this session we will discuss about the measurement of work in two cases. First case, when displacement will be along the direction of force, and second, when displacement will be in a direction other than the direction of force. Mathematical expression for work. Case first, when the direction of displacement will be along the direction of force. In this case, the direction of displacement and direction of force both acting along the same direction. That's why to calculate work done, what we will do, we will take the product of magnitude of force and magnitude of displacement. Okay, this formula always we should keep in mind. Okay, case second, when displacement will be in a direction other than the direction of force. Here theta is the angle between the direction of force and direction of displacement. The direction of displacement is here from A towards C. Okay, and the direction of line of action of force is along AB. Now children, बहुत ही ध्यान देना है, इस केस में वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लोगे, किधर, along the direction of force लोगे. W is given as magnitude of force into component of displacement of along F. Here we have put an arrow mark upon over S and over F. Why? Because displacement and force both are the vector quantity. F, and here children, AB, this is the component किसका, displacement का, किधर, along the direction of force. It means AB, this will be the component. कंपोनेंट के लिए देखो हम क्या करते हैं, मान लो तुमको AC का कंपोनेंट ड्रॉ करना है along the direction of force, तो तुम क्या करोगे, A पॉइंट जो है AB के लॉन्ग है, तुम C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये जो AB मिलेगा, this length will be the component of displacement along F, and that is AB. Now अगर आपको AB कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, in triangle, in right angle triangle ABC, in 90, the side opposite to 90 hypotenuse, adjacent side AB will be the base and BC will be the perpendicular. हमें cos लेना है, we know the formula for cos. What is the formula? Formula for cos, cos theta is given as base upon hypotenuse. That's why children, in this case AB will be the base and AC will be the hypotenuse. After simplification we will get here AB equals to AC multiplied by cos theta, and AC is what, magnitude of displacement, that is S. Now what I am going to do, I am going to substitute the value of AB as S cos theta here, in place of AB S cos theta, and that will give Fs cos theta. In this way we are getting mathematical expression for the work done. Okay, and here what we are going to do, we are going to take the component of force along the direction of displacement. बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन के अदर डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में हम वर्क डन दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला तरीका ही क्या है, आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दूसरा क्या है, तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो, किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो पहला केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब सेकंड डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का कंपोनेंट ले रहे हैं, किधर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो देखो
तरीका वही है, बहुत सिंपल। यहीं पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिए। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। ए पॉइंट जो है डिस्प्लेसमेंट पर ही है, तो देखो एन ए जो मिला ये आपका कंपोनेंट है। लेंथ एन ए किसका कंपोनेंट है? फोर्स का। इधर एलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन ए, ये 90, इसका अपोजिट साइड पी ए, जिसकी मैग्नीट्यूड एफ होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। थीटा से एडजेसेंट ये बेस हो जाएगा एन ए, थीटा का अपोजिट साइड पी एन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें कॉस लेना है, कॉस थीटा बेस एन ए अपॉन हाइपोटेनस पी ए, ठीक है। अब हमें एन ए चाहिए, तो पी ए एफ, देखो यहां पर, ये देखो पी ए एफ, और पी ए जो है मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे देखो एरो नहीं लगा, यहाँ एरो लगा है, यहाँ एरो नहीं लगा है। जहां पे एरो नहीं लगा है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। यहाँ भी वही बात है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन प्लेस ऑफ पी ए आई हैव रिटन हियर एफ। नाउ W component of F along S multiplied by magnitude of displacement। यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the direction of displacement। कितना आया है? F cos थीटा आया है, इंटू एस कर लिया, तो देखो कितना आ गया, W इक्वल टू एफ एस cos थीटा आ गया। इस तरीके से ये दोनों सिचुएशन में देखो W इक्वल टू एफ एस cos थीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया हूँ कि पी ए क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स डिनोट कर रहा है। पी ए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, ए सी डिस्प्लेसमेंट है, और केवल ए सी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Conclusion is that children, if suppose the direction of force along this one and AB is the here displacement here, vector AB is equal to vector S, and simply AP without arrow means denote the magnitude of displacement, that is S here। तो हम क्या करेंगे कि इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे, किधर लेंगे? along the direction of displacement लेंगे। अब देखो ये A जो है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि A से डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये डॉटेड और ये AB, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का। इसका मतलब ये है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है इस लाइन के साथ, इस डॉटेड लाइन के साथ जो हम लोग पैरेलल खींचे हैं AB के, उतना ही एंगल बनाएगी जितना कि ये F AB के साथ बनाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? हम आसानी से F का कंपोनेंट ले सकते हैं, किधर? along द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कंपोनेंट कैसे लेते हैं उसका ध्यान दो। AP क्या है? ये फोर्स को डिनोट कर रहा है। AN ये डायरेक्शन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। ये थीटा एंगल है। कंपोनेंट के लिए देखो हम करते क्या है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कंपोनेंट के बारे में, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एपी आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और एएन जो है वही डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो कंपोनेंट के लिए करना कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। पी से एक लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, किधर? जिसपे तुमको कंपोनेंट निकालना है या जिसके अलोंग निकालना है। ये लेंथ जो ए एन जो मिलेगा, यही लेंथ एपी मतलब फोर्स का कंपोनेंट होगा, किधर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, उसके अलोंग ये कंपोनेंट होगा। और इसे हम लोग बच्चों ए एन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। मान लो तुमको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो क्या करोगे? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ट्राइंगल ALP से तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? ये 90 के सामने का साइड AP हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये तुम्हारा AL बेस हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AL अपॉन AP। आप सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि AL की वैल्यू F sin थीटा हो गया।
और एफ साइन थीटा यहाँ पे मतलब ए एल जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हमें अभी वर्टिकल से नहीं मतलब है, हमारे यहाँ पर जरूरत की जो चीज है केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एफ कॉस थीटा से हमको मतलब है, वी आर कंसर्न अबाउट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब देख लो ये कैसे निकाला गया है, इन ट्रायंगल ए एन पी और वी कैन से पी एन ए। ठीक है, 90 है यहाँ पे एन पे कॉस थीटा ए एन अपॉन ए पी। ओके, अब यहां से आप आराम से ए एन निकाल सकते हैं, ए पी कॉस थीटा। ए पी क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, फोर्स का, जो कि एफ हो गया, ए एन कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब देखिए वो तो मैं कंपोनेंट अलग से समझाया हूं, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड लिख लो और थीटा एंगल का कॉस ले लो, सिंपल। अगर तुमको वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो क्या करोगे, देखो वर्टिकल कैसे निकालोगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, इस तरीके से, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ है। ठीक है, और इस एंगल का साइन लिख लो, एफ साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। लेकिन बच्चे हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कंसर्न है, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे, ये मैं जानकारी के लिए बता दिया हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। लेकिन अभी के लेवल में हमें केवल एफ कॉस थीटा से मतलब है, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एस एफ कॉस थीटा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। इस तरीके से एफ एस कॉस थीटा, एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, कॉस थीटा भी क्या होगा, एक नंबर होगा, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट एक नंबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो एफ एस कॉस थीटा को हम अगर हम वेक्टर की हेल्प से लिखना चाहते हैं, वेक्टर नोटेशन में हम तो लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट एस। एंड चिल्ड्रेन वी शुड बी केयरफुल, एफ डॉट एस, here dot, due to this dot f dot s is called dot product or a scalar product. Why we are saying a scalar product, because the value of f s cos theta is coming a number, that's why we are saying work as a scalar quantity. Okay, thank you very much children, we will meet in next session with a very conceptual topic.